बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी जेट तबाह किए, ये बड़ा खुलासा किया है एयरफोर्स चीफ ने। 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी तबाह किया गया, एक जासूसी विमान अवाकस को भी तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय एयरफोर्स के चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 6 पाकिस्तानी जेट्स को तबाह किया गया है। इसके साथ ही 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी जो हैं वो तबाह किए गए, जिसमें से एक जासूसी विमान अवाकस को भी तबाह किया गया है। Open to public kind of area. So there was a lot of people who were going in and out. So on the net, we could get pictures like this and videos like this. This is the same building that I just showed you. So look at the damage that has been caused inside. And it's all on the open net available. So I have also picked up from there. Please listen. Okay, don't sleep. So we all know what happened, that unfortunate incident of Pahalgam, where so many people were killed. The nation had to respond, and all that is in open media. How we were trying to achieve some things diplomatically. At the same time, we had to give them a befitting reply. We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if the leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in, and we discussed a few options, and all the other agencies also joined in. And then we decided on those 9 targets. I don't know how clear it is here. From my angle, it's not looking very clear, the text part of it. Like you see, I can make it easier for you by the red dots that you see on the map were the 7 targets that were very close to the border and LC, and they were to be taken on by Army with their integral weapons. And those 2 blue dots, we've drawn them a little bigger. They were the 2 main headquarter buildings, that is Bahawalpur and Muridke, headquarter complexes, not buildings, that were to be taken on by Indian Air Force. So this was decided. Also, when I say taken on by Indian Air Force, that doesn't mean that only Indian Air Force was to work towards that. All of us were working together, including naval assets were involved in, their weapons were used in these areas, their INT agencies were involved. And in the planning, we were all, the 3 services together along with other agencies. So this plan was discussed. Even the escalation metrics were made and discussed as to where can it lead to, what can happen, and if this happens, what is going to be our response. So it was a nicely planned out effort, and the date was decided. It was the 6th and 7th night date. And after the impact, it's not very clear. The display is not very clear, but I think the brightness of this big display is always an issue. So this is the DMPI, this is the bomb that we saw in the video before, and here this whole picture has shifted, and this is the impact that we see on the main. Not that we could do something with small drones or weapons of small caliber. They were all nicely hardened structures. So we decided to go with long-range weapons to keep ourselves safe from their air defenses, but at the same time, accurate weapons to get the targets while not causing any other damage to the areas around. And special emphasis throughout has been that there should be minimum civilian casualties who are not involved with this. तो ये बड़ा खुलासा है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की तरफ से, जानकारी देते हुए सबूतों के साथ वो बता रहे कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्लान आउट किया गया और
पाकिस्तानी जो जेट्स हैं उनको तबाह किया गया है। सीधा मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करता हूं जो तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुड़े। राजीव, ये पहली बार है जब एयरफोर्स की तरफ से खुद एयर चीफ मार्शल जो है वो औपचारिक रूप से बता रहे हैं कि भाई हमने इतनी जगहों पर हिट किया, ये कैजुअलिटीज रही और 5 फाइटर जेट्स और एक अवैकस सिस्टम को जो है वो तबाह किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पहली बार इस बात का खुलासा कर रहे हैं और आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना ऐलान करे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी जो वायुसेना का जो ढांचा है उसको किस तरह से तबाह किया गया। न केवल पाकिस्तानी फाइटर को मार गिराया गया बल्कि जो पाकिस्तान के जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी तबाह किया गया। और सबसे बड़ी बात कि ये भारतीय वायुसेना या इसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चाहे S-400 की बात करें, बिना LOC क्रॉस किए हुए यानी पाकिस्तान में सीमा के दाखिल हुए बिना ये सब कुछ डिस्ट्रॉय किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय वायुसेना की। इसके साथ ही एक और चीज अभी अब जो वो बोल रहे थे एयर चीफ मार्शल, हमने सुना कि ना केवल इंडियन एयरफोर्स बल्कि एक कंबाइंड ऑपरेशन था, तीनों सेना की टुकड़ियां शामिल थी और चूंकि जो टारगेट्स थे एयर चीफ मार्शल बता रहे थे कि वो टारगेट्स जो है वो बहुत हाइड आउट्स के लिहाज से बहुत मुश्किल थे, इसलिए प्रिसाइज वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। किन किन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में क्या जानकारी है राजीव? देखिए, भारतीय वायुसेना का एक इतना बेहतर ऑपरेशन था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाई कि नौसेना जो है इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं ली थी, यानी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया नौसेना ने, लेकिन अरब सागर में पूरे जो कराची का जो है एक कह सकते कि घेरा बना लिया और पाकिस्तानी नौसेना के कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें या फिर पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं, पोर्ट की बात करें, युद्धपोत की बात करें, बाहर नहीं निकल पाया। थल सेना जो है जो खासतौर से जो हमारे LOC से सटा हुआ है जो इलाका है वहां अपने मिसाइल के जरिए जो पाकिस्तान पर फायर किया, वही वायुसेना जो है जो वायुसेना के फाइटर का इस्तेमाल हुआ, S-400 का मिसाइल हुआ और सबसे बड़ी बात ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान को तो पता ही नहीं लगा कि कब ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है या पाकिस्तान के जो बेसेस है उसको तबाह किया। जब उसे हिट कर दिया उसके बाद पाकिस्तान को पता लग रहा है कि ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता जो है वो कितनी खतरनाक है। और राजीव, इसमें अहम यह भी है कि जिन एयर बेसिस को पाकिस्तान के टारगेट किया गया वो एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पर उसको प्लान आउट किया हमारी तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम ने और उसके बाद जो स्ट्राइक्स कैरी ऑन की एयरफोर्स ने वो बहुत प्रिसाइज थे, जो टारगेट्स थे उन्हीं को हिट किया, आसपास के किसी भी सिविलियन इलाके को कहीं कोई क्षति नहीं पहुंची। और प्रिसाइज ये जो अटैक था उसके बारे में पहली बार जब आज खुद एयर चीफ मार्शल ब्रीफिंग दे रहे हैं और वो तमाम साक्ष्य और सबूत के साथ ये प्रेजेंटेशन जो है वो इस वक्त रख रहे हैं लोगों के सामने। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना ने, अगर आपको याद होगा कि 9 जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर बिल्कुल सटीक फायरिंग किया और तबाह किया और पाकिस्तान को यह भी बताया कि हम आपके जो सैन्य ठिकाने हैं उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम आपके किसी भी सिविलियन को हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर जवाबी कार्रवाई कीजिएगा तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने जो है आतंकी ठिकानों के बाद जो है जवाबी कार्रवाई की भारतवाद, तो उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। 11 से ज्यादा पाकिस्तान के जो एयरबेस थे तबाह हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए और पाकिस्तानी सेना को जो मुंह खानी पड़ी है इसका दर्द उसे हमेशा याद रहेगा।